Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos on the topic of rational numbers and mathematics for students studying in Class 8 under the CBSE board. These videos have been carefully curated to cover the entire CERT syllabus, ensuring that students receive a comprehensive understanding of this fundamental concept. Rational numbers are an essential part of the number system and play a significant role in various mathematical operations. This video series aims to simplify the understanding of rational numbers by breaking down complex concepts into easily digestible explanations. Students can now grasp the fundamentals of rational numbers with ease and confidence. The series covers a wide range of topics related to rational numbers, such as introduction to rational numbers, representation on the number line, operations on rational numbers, and their applications in real-life situations. Each video provides step-by-step explanations and examples to help students strengthen their problem-solving skills. With the help of these videos, students can now enhance their knowledge and achieve a deeper understanding of rational numbers. The engaging visual aids and clear explanations provided in this series will help students excel in their examinations and build a strong foundation in mathematics. Ignited Minds Tutorials has always been dedicated to providing top-quality educational resources, and this series on rational numbers is no exception. Students can access these videos at their convenience, making learning a fun and interactive experience. Don't miss out on this excellent opportunity to strengthen your mathematical skills and excel in your examinations. Okay, so बच्चा पार्टी टुडे वी विल डू रैशनल नंबर्स का हमने थोड़ा बहुत पोर्शन किया था, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब सारी चीज़ें की थी. तो आज अपन करेंगे रैशनल नंबर्स में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ बेसिकली. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपल. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो पहला आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. सो इसमें आप दो रैशनल नंबर कंसिडर कीजिए. ठीक है, और रैशनल नंबर किस फॉर्मेट में होता है? P/Q फॉर्मेट में होता है. ठीक है, रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ P/Q वेयर P एंड Q कैन बोथ बी, P आपका इक्वलेंट है इंटीजर्स को और Q भी आपका इंटीजर्स को, बट Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ये आपका नेसेसरी कंडीशन है. ठीक है, एनी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q. ठीक है, ओके. तो देखिए हमारे जैसे 15/31 इज इट अ रैशनल नंबर? यस इट इज. ठीक है, ओके. एंड वी हैव बेसिकली 3/31. तो जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक आप रैशनल नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं उनको ऐड नहीं कर सकते. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. ठीक है, ओके. सो लेट्स ऐड देम. तो आपने यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ गया? देखो डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव एंड इक्वल. So let's add the numerators. तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 15 plus 3/31, that is 18/31. So what can we conclude? Addition of two rational numbers, ठीक है, ये हो गया आपका 18/31 is also a rational number. This property is called the closure property. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. What is closure property? Closure property मतलब बंद होना. ठीक है, closure property मतलब बंद होना. Rational number 1 plus rational number 2 will be equal to rational number 3. This is called closure property. ठीक है, addition of two rational numbers. ठीक है, addition of two rational numbers, addition of two rational numbers is equal to a rational number. दो rational numbers को बच्चा पार्टी अगर आप add करेंगे so it will be equal to a rational number. This is called the closure property of addition of rational numbers. ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है ये. ओके, so addition of two rational numbers is also a rational number. Please make a note people. Addition of two rational numbers is also a rational number. That's the closure property. ठीक है, क्लियर है? हो गया नोट? आगे बढ़े. Addition of two rational numbers people will be another rational number. Okay, so now next let's see what happens when we reverse the order of addition. तो आप देखो यहाँ पे अगर आपने रिवर्स किया ऑर्डर को, मतलब इसको पहले किया और इसको बाद में. ठीक है, so let's say if we do 3/31 plus 15/31. तो इधर देख लीजिए, पहले आपने क्या किया था? 15/31
प्लस 3/31 किया था. Now what you are doing is you are reversing the order of addition. So you are keeping the second as first and the first as second. So यहाँ पे 3/31 plus 15/31 कर रहे हैं. Now what will be the answer people यहाँ पे? तो 3 plus 15/31 that will be 18/31. So what do we conclude? हम ये conclude करते हैं कि rational number 1 plus rational number 2 is equal to rational number 2 plus rational number 1. क्या ये समझ में आ रहा है? हमने अगर रिवर्स किया ऑर्डर को, so it is not going to change the result. If we happen to reverse the order, the result order or the result is not going to change. ठीक है? So result आपका change नहीं होगा. 18/31 will be equal to 18 by. Reversing the order of addition of rational numbers gives the same result. So if you reverse the order of addition of rational numbers, you get the same result. इसको अपन क्या बोलेंगे? Commutative law. Okay, so what does the commutative law state? That if you happen to reverse the order of addition between two rational numbers, the answer is not going to change. It is going to give you the same answer. Okay, so addition of two rational numbers is also a rational number. ये closure property था. Commutative law क्या हो जाएगा? If ठीक है, if a by b and c by d are two rational numbers, then a by b plus c by d will be equal to c by d plus a by b. ये हो गया आपका commutative law. ठीक है, c by d plus a by b. This is commutative law. Are we clear on this one people? Please make a note people. फटाफट इसका एक नोट बनाइए और इसका commutative law. फटाफट फटाफट क्विक क्विक क्विक. या तो एक काम कीजिए, आप ये नोट सारे जो मैं वीडियोस भेजूंगा उससे देखकर बना लीजिए. ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे समझने में ध्यान दीजिए. ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. वंस यू रीच होम एंड वंस आई रिलीज द वीडियो देन यू कैन बेसिकली मेक नोट्स आउट हियर. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, अभी हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई. ठीक है, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स गिव्स यू अ रैशनल नंबर, दैट्स द क्लोजर प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इफ यू हैपन टू चेंज द order of addition between two rational numbers, the answer is going to be same. So we have a by b plus c by d. This will be equal to c by d plus a by b. That is called commutative law. Okay. Alright. So next let's have three rational numbers. So अगर हम three rational numbers को देखेंगे, 4/31 plus 3/31 plus 8/31. तो अभी हम यहाँ पे अगर इन दोनों को पहले ऐड कर ले, suppose we group the first two numbers. तो 4/3 तो ये कितना हो जाएगा? 7/31. 7/31 प्लस 8/31 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15/31. अगर हमने पहले दो नंबर्स की ग्रुपिंग की, ठीक है, और अगर समझ लो इसको अलग रखा और इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग की, तो क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल आएगा. 8 + 3 11 आएगा, 11 + 4 15. सो इफ यू हैपन टू ग्रुप द नंबर्स, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी. ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4 + 3 + 8, तो ये हो गया 7. ये हो गया 7 + 8, दैट इज इक्वल टू 15/7. व्हाट वी ग्रुप द थर्ड एंड द सेकंड एंड द थर्ड नंबर्स. तो अगर हमने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी तो कितनी हो जाएगी बोलो? ये हो जाएगी आपकी 4/31 plus 3a/8. तो ये हो गया आपका कितना? 4 + 11, दैट इज 15/31. व्हाट डू वी कंक्लूड? तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि अगर a + b + c + d + लेट्स से e/f ऐसा है, और अगर हमने इन दोनों की ग्रुपिंग की मतलब इन दोनों को पहले ऐड किया, दिस विल बी इक्वल टू a/b plus c/d plus e/f. क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? सो व्हाट डू वी कंक्लूड हियर? 15/31 हो गया. सो एडिंग थ्री रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम रिजल्ट. कैसे भी ऐड करो, किसी को भी पहले रखो, दो ग्रुप्स बनाओ, ठीक है, थर्ड से ऐड करो, इट्स गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. सो व्हाट इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन पीपल? सिंपल टर्म्स में a/b plus c/d plus e/f है, तो a/b plus c/d को आपने पहले ऐड किया, फिर उसको e/f के साथ ऐड करोगे, whatever result you are getting is going to be the same as a/b plus c/d और e/f को ग्रुपिंग करके अगर आप करो. ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ को अगर हम एक्सप्रेस करें, इफ a/b c/d and e are three rational numbers, so a/b plus c/d plus e/f, अगर हमने इनकी ग्रुपिंग पहले की a/b plus c/d, this will be equal to a/b plus c/d plus e/f. Are we clear through this one people? हम समझ में आता हूं?
बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। लेट्स सी एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर विद जीरो। तो आपने यहाँ पे एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी पीपल? Addition of two rational numbers is going to give you a rational number. What is associative law? A plus B, A by B plus C by D will be equal to C by D plus A by B. That is basically what? Commutative. And what is associative? A by B plus C by D bracket plus E by F will be equal to A by B plus C by D plus E by F in bracket. ये तीन लॉस समझ में आ गए? Okay. Now we will talk about the addition of a rational number with zero. So let's say, अगर बाद में लिख लेना, घर में जाकर वीडियो देख के लिख लेना आराम से, ठीक है। तो 15 प्लस 31 प्लस 0 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 15/31। इसको अपन क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मींस व्हाट? किसी भी रैशनल, इनफैक्ट किसी भी नंबर से अगर आप 0 को ऐड करोगे तो वो नंबर ही आएगा। इसको अपन आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यू आर गेटिंग द सेम नंबर, द आंसर ऑफ द एडिशन इज द सेम नंबर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। Existence of additive identity for any rational number a by b, ठीक है। अगर हमने a by b plus 0 किया, so it will be a by b. This is called additive identity. Are we clear on this one people? बहुत बढ़िया भाई साहब। Next see the addition of a rational number with its negative. अगर एक rational number को उसके negative के साथ ऐड करोगे कितना आएगा? 5 है कोई rational number, -5 के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा? नहीं, 5 और -5 ऐड करोगे तो 0 आएगा, है ना। 5 देखो ना यहाँ पे, समझ 5 इज अ रैशनल नंबर प्लस -5, दैट विल बी हाउ मच? प्लस और माइनस में हमेशा माइनस जीतता है। 5 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। सो कंसीडर अ रैशनल नंबर, लेट्स से 15/31 प्लस आपने यहाँ पे -15/31 किया, तो प्लस और माइनस में माइनस जीतेगा, ठीक है। तो दिस विल बी 15/31 माइनस, तो ये हो गया आपका 15 - 15 दैट इज 0/31 दैट इज इक्वल टू 0। सो एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर विद इट्स नेगेटिव गिव्स द रिजल्ट एज 0। तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर उसके नेगेटिव के साथ आप ऐड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 0, ठीक है। तो फिर से अगेन पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा आपने? क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। दूसरा प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a by b प्लस c by d इज इक्वल टू c by d प्लस a by b। ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा, एडिशन में होगा ये, सब्ट्रैक्शन में नहीं, ठीक है। देन व्हाट यू स्टडीड इज एसोसिएटिव। तो a by b प्लस c अगर ग्रुपिंग करके आपने ऐड किया एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को, तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन व्हाट यू स्टडीड? देन यू स्टडीड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या हो जाएगा? a by b प्लस 0 इज गोइंग टू गिव यू a by b, क्लियर है। और फिर आपका भाई साहब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो आपका अगर हम इसके नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को अगर उसके नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट 0, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसको अपन क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 के साथ ऐड करना। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव के साथ ऐड करना, सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट 0, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ में आ रहा है? ओके। सो a by b है प्लस माइनस a by b क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड पीपल। सो फटाफट से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो अगर आप देखोगे भाई साहब, आपका रैशनल नंबर है तो a by b प्लस c by d इज इक्वल टू लेट्स से e by f। तो ये वाला भी आपका क्या होगा? रैशनल, और ये वाला भी आपका क्या होगा? रैशनल। इस प्रॉपर्टी को अपन बच्चा पार्टी क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है। और क्या पढ़ा हमने भाई साहब? a by b प्लस c by d इज इक्वल टू c by d प्लस a by b, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चा पार्टी? a by b प्लस c by d प्लस e by f है। तो अगर इन दोनों को हमने ऐड किया, दिस विल बी इक्वल टू a by b प्लस c by d प्लस e by f, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। और क्या पढ़ा बच्चा पार्टी हमने? a by b प्लस 0 दिस विल बी इक्वल टू a by b, इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने भाई साहब?
ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी, इसका क्या आ जाएगा 0। तो ये माइनस ए बाई बी को अपन क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइनस ए बाई बी इज द एडिटिव इनवर्स, माइनस ए बाई बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी। क्लियर है? ए बाई बी प्लस 0 इज इक्वल टू ए बाई बी, ये क्या हो जाएगा बोलो, आइडेंटिटी है ना। दिस इज बेसिकली आइडेंटिटी। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। ओके, एडिटिव इनवर्स। तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, जिसके साथ अगर आप रैशनल नंबर को ऐड करो तो आपको क्या मिल जाए, 0। तो 2/8 के साथ किसको ऐड करोगे कि 0 मिल जाए, -2/8 के साथ। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2/8, ठीक है, नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स, ये क्या हो जाएगा -2/8, इसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। सो -2/8। सो अगर आपने भाई साहब 2/8 को, अगर आपने भाई साहब 2/8 को, ठीक है, प्लस -2/8 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 0। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ओके, नाउ लेट्स लुक एट -5/9। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, -5/9 इंटू -1, कितना आ जाएगा बोलो, 5/9। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 5/9, क्योंकि अगर आप -5/9 प्लस 5/9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यू आर गोइंग टू गेट 0। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो गया, -5/9 को अपन ने -1 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, उस नंबर को, उस रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर, ये कैसे आ जाएगा बोलो, रैशनल नंबर इंटू -1। किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उस रैशनल नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो जैसे आपका यहाँ पे -6/-5, ये कितना हो जाएगा बोलो, देखो -6/-5 मतलब रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6/5। अभी इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6/5। तो -6/-5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 6 -6/5। ठीक है, -6/-5 का एडिटिव इनवर्स विल बी -6/5। ठीक है, ओके, सो वी हैव 6/5, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 6/-5 या -6/5 लिखिए। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव मत रखिए, -6/5 लिखिए। ठीक है, सो दैट वुड बी एन अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, किसी रैशनल नंबर को जब हम एक ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 1 आ जाए। ठीक है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। सो -13 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, -1/13 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/13। देखो -13 है, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया -1/13 से, माइनस माइनस कैंसिल और ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, इसी तरह से देखो कितना है, -13/19। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/13। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -13/19 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है ना, तो -19/13। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि तुम्हें 1 चाहिए, तो माइनस माइनस कैंसिल होंगे, 19 1 19, 13 1 13, ये आ गया 1/1, दैट विल बी 1। ठीक है, सो किसी भी नंबर का, फॉर एनी नंबर, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। ठीक है,
दैट विल बी ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। समझ में आ रहा है? अगर समझ लो 14 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/14। अगर समझ लो 12 है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/12। सो दीज आर व्हाट, दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो जैसे -13/19 है, इसका क्या हो जाएगा 19/13। ठीक है, ओके। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, सो अभी देखो मल्टीप्लाई 4/9 एंड 7/12। तो 4/9 को आप 7/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हो गया 7/27। ठीक है, 4/9 को अपन ने 7/12 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू गेट 7/27। तो 4/9 है, 7/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा आपका 7/27। क्लियर? ओके ओके ओके। फाइंड द प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, -9 इंटू 7/12, तो देखो यहाँ पे 3 से दोनों भी जाएंगे, आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, सामने सामने नहीं काट सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 3s are 9, 3 4s are 12, दोनों को 3 से काटा, कितना आ गया बोलो, 3 इंटू -7, ये आ गया -21/4। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो यहाँ पे हो गया -9, सो ये हो गया -9, दिस विल बी हाउ मच, -63/12। इतना लंबा मत करने जाओ, ये ज़्यादा शॉर्ट मेथड होगा। देखो इतने सारे स्टेप्स से ये ज़्यादा अच्छा मेथड होगा। ठीक है, एक बार में ही तुम्हारा एक झटके में ही आंसर आ जाएगा। तुमको तब तक डिवाइड करना है जब तक दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। अभी 21 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इसको कैसे करोगे, देखो -3/16 है इनटू माइनस, देखो जब भी आपका माइनस यहां पे रहेगा मतलब फ्रैक्शन के लिए माइनस है, वो न्यूमरेटर में माइनस रहे या सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस रहे, मतलब पूरे फ्रैक्शन के लिए वो माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 5 10, पॉजिटिव 1/10 आ गया। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज गोइंग टू बी, आप यहां पे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा चलेगा, अवॉइड दिस पीपल। ठीक है, हेलो, हाँ कहां से बोल रहे हैं? नहीं नहीं मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। सो यहां पे आ गया भाई साहब आपको कितना 1/10। सो लेट्स से फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, 6/7 इंटू -21/12 है। ठीक है, ऊपर नीचे कटन कटन हो सकती है, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो यहाँ पे 1 इंटू 3, तो ये क्या हो गया -3, 1 इंटू 2, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, 3/2। सो यहाँ पे हो गया आपका कितना, लेट्स मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी -3/2। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फोर्थ वाला हुआ ना? ओके, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कंसिडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो 15/4 इंटू 3/7, लेट्स मल्टीप्लाई द नंबर्स। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, देखो सिंपल सा है, 15/4 है। ठीक है, व्हाट इज इट बेसिकली पीपल, 15/4 इंटू 3/7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 15 3s are 45, 4 7s are 28। कोई भी कॉमन फैक्टर्स इसमें नहीं है। तो देखो ये क्या है, एक रैशनल नंबर, ये क्या है, एक रैशनल नंबर, और ये क्या आया बच्चा पार्टी, ये भी एक रैशनल नंबर आया। तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज गोइंग टू गिव यू अ रैशनल नंबर। अभी थोड़ा सा रिकॉल करो, तुमने एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज गोइंग टू गिव यू अ रैशनल नंबर। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। So in multiplication also you are getting a closure property,
ठीक है, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. जस्ट एज यू हैड closure property of addition, in the same way you will have closure property of multiplication. Are we clear to this one people? समझम. Okay, so यहाँ पे multiplication of two rational numbers is also a rational number. This property is known as closure property of multiplication. इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? यहाँ पे लेट्स राइट द रैशनल नंबर्स. तो यहाँ पे हो गया 45/28. सो व्हाट डू वी कंक्लूड? इफ वी हैपन टू मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स, इट्स ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ रैशनल नंबर. ठीक है, ओके. रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो अगर समझ लो a/b है इंटू c/d है, तो ये किसके बराबर होगा? c/d इंटू a/b. अगर तुमने भाई साहब यहाँ पे a/b का c/d से मल्टीप्लीकेशन किया, ये भाई साहब बराबर होगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तुमने इसके पहले क्या पढ़ा? a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b. सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी लागू होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इज एप्लीकेबल बोथ टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह से आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, ओके. तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा बोलो? इफ a/b एंड c/d आर टू रैशनल नंबर्स. अगर a/b और c/d दो रैशनल नंबर्स हैं, तो a/b इंटू c/d विल बी इक्वल टू c/d इंटू a/b. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. Next, let's observe the multiplication of three rational numbers. So 4/3 into 2/7 into 5/9. ठीक है, अगर समझ लो भाई साहब आपका ऐसा है तीन रैशनल नंबर्स का. यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं बोलो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जो हमने भाई साहब एडिशन में किया था वही चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं. तो हमने को क्या करेंगे? ग्रुपिज्म करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे अगर हमने किया 4/3 into 2/7 into 5/9, लेट्स से हमने यहाँ पे ग्रुपिज्म किया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 8/21 इंटू 5/9. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? 40/9 1 9 2 9 18. ठीक है, ओके. अभी हमारा यहाँ पे क्या है? 4/3 इंटू 2/7 इंटू 5/9. अगर हमने भाई साहब यहाँ पे ग्रुपिज्म किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 10/63 है ना, 10/63. तो कितना आ जाएगा बोलो? अगेन 40/3 3 9 6 3 18. तो दोनों में भी आपका क्या आ गया? सेम आंसर आ गया. ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में भी एसोसिएटिविटी आपको दिखती है. ठीक है, यू विल फॉलो एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेट्स मल्टीप्लाई. तो हमने भाई साहब ग्रुप्स में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना हो गया? दिस इज बेसिकली इक्वल टू 40. अभी इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो? 4/3 इंटू, ठीक है, तो ये आ गया आपका 40/89. व्हाट डू वी कंक्लूड? that multiplication of rational numbers is associative. ठीक है, this property is known as associative law of multiplication. Are we clear to this one people? ठीक है, okay. So associative law, if a/b, c/d and e/f are three rational numbers, अगर ये तीन rational numbers हैं, if these are three rational numbers, then a/b into c/d into e/f will be equal to a/b into c/d ग्रुप में. This will be equal to a/b into c/d into e/f. This is called associative law. ठीक है, ओके. नाउ इसके बाद क्या बचेगा? ऑब्वियसली आपका आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी. लेट्स से अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा. सो इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इसको बोलेंगे. ठीक है, देखो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या फर्क है? एडिटिव इनवर्स, ठीक है, और चलो पहले हम इसको देख लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स से कंसीडर अ रैशनल नंबर. इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यू गेटिंग द सेम नंबर. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो कोई रैशनल नंबर है a/b प्लस 0 करोगे तो ये क्या आएगा? a/b. ठीक है, और कोई रैशनल नंबर है a/b इंटू 1 करोगे तो आएगा ये a/b. तो ये वाला क्या हो जाएगा? दिस विल बी एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ रहा है ये? और ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मतलब क्या है? सेम चीज आना. आप जैसे मिरर के सामने खड़े होते हो वैसे ही दिखते हो, जो ड्रेस आपने पहना है वैसे ही दिखेगा.
वैसे ये नंबर का मिरर आ जाएगा इधर, ठीक है, मिरर इमेज आ जाएगा। सो ए बाई बी प्लस 0 आपको क्या दे रहा है, ए बाई बी, ए बाई बी इंटू 1 आपको क्या दे रहा है, ए बाई बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एडिटिव आइडेंटिटी एंड दिस विल बी योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम तुम लोग क्या लिख रहे हो, यही लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो? अरे तुम्हारा है ये कोर्स में, तुम लोग देख ही नहीं रहे उसको। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। हाँ नहीं, साइन कहाँ चेंज हो रहा है? नहीं, माइनस में होगा। एडिटिव आइडेंटिटी है ना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वो इनवर्स है, वो इनवर्स है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी मतलब सेम नंबर का आना। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आप जो चीज बोल रहे हो ए बाई बी, ठीक है, अगर हमको 0 लाना है तो हमको किससे, माइनस ए बाई बी, यहां पे साइन चेंज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है वो, दिस इज बेसिकली एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 लाना रहेगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा हो जाएगा रैशनल नंबर का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए बाई बी इंटू 0 कर दोगे तुम तो भी 0 आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फॉर एनी रैशनल नंबर ए बाई बी इंटू 1 इज इक्वल टू ए बाई बी, सो दिस 1 इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ओके। अभी हम रैशनल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 15/4 इंटू 0 ये आपको क्या दे देगा, 0/4, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। फॉर एनी रैशनल नंबर ए बाई बी इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन विद इट्स रेसिप्रोकल। अगर हमने किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो एक रैशनल नंबर है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 बाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या आ जाएगा, बोलो 1, ऑब्वियसली 1, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल गिव्स यू द रिजल्ट 1। सो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको अपन बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो आपको रिजल्ट क्या दे, 1, ठीक है। तो a बाई बी इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सो लेट्स से 4/3 है इंटू 2/7 प्लस 3/7 है, ठीक है, ओके। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, देखो 4/3 है इंटू 2/7 प्लस 3/7। एक काम करो, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए आज के लिए, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग सब इधर पीछे बैठिए जरा।